جی السلام علیکم۔ ایم سی کیوز کے ایک اور سیشن میں حاضر ہیں سرز کلاس روم میں۔ میں ڈاکٹر سہیب ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے جو ٹاپکس کیے ہیں وہ ہیں ریلیشن آف بایولوجی ود ادر سائنسز، یعنی بایولوجی کا دیگر علوم کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور دوسرا جو ہم نے کیا تھا وہ تھا کریئرز ان بایولوجی، بایولوجی سے منسلک پیشے۔ اسی کے متعلق جو ایم سی کیوز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ایم سی کیوز کو کیسے اٹیمپٹ کرنے کا ہم پہلے ایک مرتبہ پچھلے جو ہمارے سیشن میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایم سی کیوز کے کیا حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو اسٹیم کہتے ہیں جو کوشچن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ 4 آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آنسر کی ہوتی ہے جو کریکٹ ہوتا ہے، اور باقی 3 ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے تاکہ جو ڈسٹریکٹرز ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز کرنے کے لیے، کہ آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے ہیں، اور آپ نے ایم سی کیوز کی پریکٹس کی ہونی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ نے 4-5 چیپٹرز اچھی طرح کر لیے اور ایم سی کیوز انصاف کی طرح وہ آ گئے جو آپ نے چھوڑ دیے تھے۔ آگے چلتے ہیں جی، ریلیشنس آف بایولوجی ود ادر سائنسز کے کوشچنس کیسے آتے ہیں۔ ایک ہی جیسے کوشچن ہے کہ انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو لیونگ آرگینزمز از کالڈ، جانداروں کے متعلق جو اعداد و شمار کا تجزیہ اور تشریح، انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بایو اسٹیٹسٹکس کہلاتا ہے، بایو فزکس نہیں ہوتا۔ بایو جاگرفی میں جاگرفی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی لیونگ آرگینزم کے مٹیریل یا مادے کو استعمال کرتے ہوئے نئے پروڈکٹس بنانے کو کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو آنسر ہے وہ بایو اسٹیٹسٹکس ہے، اردو میں بایو میتھمیٹکس ہے، بایو میٹری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے آپ اس کو اٹیمپٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ ہے اپلیکیشن آف پرنسپلس آف فزکس ٹو بایولوجیکل پروسیسز از کالڈ، بایولوجیکل مظاہر پر فزکس کے قوانین کا اطلاق کیا کہلاتا ہے۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا ہے، اس کو غلط کرنے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ بایو فزکس اس کا آنسر ہے، کیونکہ یہاں پہ فزکس کا ورڈ ہے۔ ایک یہ کوشچن ہے ہمارے پاس جس میں ہے کہ یوز آف میتھمیٹیکل ماڈلز، الگوریدمس، کمپیوٹر سیمولیشنز ٹو انڈرسٹینڈ دی بایولوجیکل سسٹمز اینڈ ریلیشن شپس از کالڈ، جو بایولوجیکل سسٹمز اور ان کے باہمی تعلقات کو سمجھنے کے لیے میتھمیٹیکل ماڈلز، الگوریدمس، کمپیوٹر سیمولیشنز کے استعمال کو کیا کہا جاتا ہے۔ بایو فزکس تو فزکس میں ہے، اسٹیٹسٹکس بھی ہم نے دیکھ لیا کہ نہیں ہے، بایو ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، تو یہ کمپیوٹیشنل بایولوجی ہی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ایک دو کنفیوژن ہو سکتی ہیں، اسپیشلی اردو کے کیس میں، جیسے بایو میتھمیٹکس، اس کو بایو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں انگلش میں، وہ یہ میتھمیٹیکل ماڈلز کے ساتھ کنفیوز ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز ہمارے پاس کمپیوٹر سیمولیشنز ہے، جو کہ کمپیوٹیشنل بایولوجی کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ تو آپ کو ڈیفینیشنز اچھی طرح کی ہونی چاہیے، تو یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کمپیوٹیشنل بایولوجی جو ہے وہ اردو میں نہیں ہے آپ کی بک میں، لیکن آپ پھر بھی اس کو کر لیجیے گا، کیونکہ بسا اوقات کوشچنس اس پورشن میں سے آ جاتے ہیں جو انگلش اور اردو میڈیم میں ڈفرینس ہے۔ تو اگر آپ نے دونوں کیے ہوں گے تو آپ کو اٹیمپٹ کرنا آسان ہوگا۔ یہ سارے ہم نے کیے تھے، انگلش میں 7 تھے جو ریلیشنز آف بایولوجی کے لحاظ سے جو فیلڈز بنتے ہیں، اور اردو میں 5 تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے 3-4 ابھی کر لیے ہیں، باقی آپ ڈیفینیشنز خود دیکھیں اور سوچیں کہ کس طرح کا کوشچن اس میں سے آ سکتا ہے، بلکہ کوشچن خود بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو کانفیڈنس آئے گا۔ اب یہ ایک کوشچن آپ کے ایک پیپر میں سے مجھے ملا تھا کہ مسلز اور بونز کے حرکات و عمل کا مطالعہ کہلاتا ہے، دی اسٹڈی آف ورکنگ آف مسلز اینڈ بونز از کالڈ۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو ایک آپ
आपके पास ऑप्शन है बायोमेट्री का, बायोफिजिक्स का, बायोटेक्नोलॉजी का, और एक है नन। बाज़ औक़ात ये भी आ जाते हैं नन या ऑल ऑफ अबव, तो उनको आप उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, ये किसी की डेफिनेशन के लिहाज से नहीं है। अगर आप अपनी बुक्स को देखें तो उनमें हर डेफिनेशन के बाद एक आध कोई एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे बायोफिजिक्स की ये एग्जाम्पल है, वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। मिसाल के तौर पे फिजिक्स में लिवर और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के इस्तेमाल के असूल एक से हैं। ये जो टांगे हैं दे आर बेसिकली मसल्स एंड बोन्स। तो बाज़ औक़ात इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसी एग्जाम्पल के लिहाज से आपको क्वेश्चन किया गया हो, तो आपकी जो बुक्स में एग्जाम्पल्स हैं वो सारी देख लीजिएगा। हम आगे भी देखते हैं अभी, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो तो आपकी बुक से बाहर की एग्जाम्पल्स भी आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन एक देखते हैं। द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिसर्च इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग विच साइंस, कि कौन सी साइंस ऐसी है जो कि बायोलॉजिकल तजर्बात से हासिल होने वाली आदाद व शुमार का तज्जिया करती है। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो उसमें जैसे बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेस अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। मिसाल के तौर पे तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले आदाद व शुमार के तज्जिए के लिए बायोलॉजिस्ट मैथमेटिक्स के असूल इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर आपने किया होगा तो आप ये आराम से इसको देख लेंगे कि ये बायोस्टैटिस्टिक्स है, इसका आंसर यानी बायोमेट्री है। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा लाइक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स इज डन बाय यूजिंग। बायोलॉजिकल डेटा के तज्जिए जैसे अमीनो एसिड्स का प्रोटीन्स में तसलसल यानी सीक्वेंस किसके जरिए किया जाता है। अगर आपने अपनी बुक्स में एग्जाम्पल्स की हों तो ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की एग्जाम्पल बनती है। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, जो कि ये क्वेश्चन बनता है। इसमें हयातियाती डेटा का तज्जिया करना शामिल होता है, जैसे कि प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स की तरतीब का मुताला। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उर्दू की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी नहीं दिया गया, लेकिन बाज़ औक़ात ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि या इंग्लिश मीडियम में ना हो या उर्दू मीडियम में ना हो। तो अगर आपने दोनों किए होंगे तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है? मज़ीद ये कि इसकी एक एग्ज़ाम्पल और भी बनती है, सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स, जीन सीक्वेंसिंग। ठीक है? तो अगर वो क्वेश्चन आ जाता है उसके लिहाज से वो भी आप अटेम्प्ट करें कि सीक्वेंस से याद रख लें, अगर आप याद रखना चाहें कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस और जीन्स का सीक्वेंस, ये दोनों कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है? द कॉस्ट एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। नई फसल की किस्म की लागत और मुनाफे या नुकसान का तयन किसके ज़रिए लगाया जाता है? तो यहाँ पे तो कॉस्ट, प्रॉफ़िट, लॉस ये सारा कुछ जो है आप मेरा ख़्याल है जानते होंगे, इसका ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ है, तो इसका आंसर बायो इकोनॉमिक्स होगा। बुक के अंदर जो एग्ज़ाम्पल है वो भी यही है, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ स्टडीड इन। जो मौसमियाती तब्दीलियों का जानदारों की तकसीम पर असर क्या होता है, वो किस में स्टडी किया जाता है? बायोस्टैटिस्टिक्स तो नहीं हो सकती, बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं हो सकती, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी नहीं हो सकती, तो बायोजियोग्राफी होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ज़िक्र है। इसी तरह इसके अंदर और क्या चीज़ आ सकती है कि जैसे मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर मुख्तलिफ आज़म जो हैं, उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके बारे में सवाल आ सकता है। मुख्तलिफ टेरेन्स जो हैं, मुख्तलिफ ज़मीन की टाइप्स जो हैं, जैसे
پہاڑ ہو گیا، میدان ہو گیا، ڈیزرٹس ہو گئے، ان میں جو ڈسٹریبیوشن ہے آرگنیزمس کی، وہ بھی بایو جیوگرافی میں آتی ہے. تو اس طرح کے اگر آپ کو کوئی کوشچنس آئیں گے تو آپ اس کو بایو جیوگرافی کریکٹ کریں گے. پھر جو فوٹوسنتھسس ہے، یہ ریئیکشنز آف فوٹوسنتھسس اینڈ ریسپریشنز کس چیز کی ایگزامپل ہیں؟ فوٹوسنتھسس اور ریئیکشنز کس کی ایگزامپلس ہیں؟ فزکس کی تو نہیں ہے، تو بایو فزکس نہیں ہے، کمپٹیشنل بایولوجی بھی نہیں ہے، بایو جیوگرافی بھی نہیں ہے، تو یہ کیمیکل ریئیکشنز ہے نا، تو یہ کیمسٹری کی، بایو کیمسٹری کی ایگزامپل ہوگی. تو اس کا آنسر بایو کیمسٹری ہوگا. تو اگر آپ اپنی بک کے اندر ایگزامپلس دیکھیں تو یہی دو ایگزامپلس آپ کی بایو کیمسٹری کی، فوٹوسنتھسس اور ریسپریشن گیون. If a scientist is studying the method of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology this may be؟ اگر ایک سائنسدان بیکٹیریا میں انسانی انسولین کے جینز کو داخل کرنے کے طریقے کا مطالعہ کر رہا ہے تو یہ بایولوجی کی کس شاخ سے تعلق رکھتا ہے؟ Bioteknologists use bacteria for production of insulin to treat diabetic patients. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بایو ٹیکنالوجیز ذیابیطس کے مریضوں کے علاج کے لیے انسولین کی تیاری میں بیکٹیریا کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ آپ کے ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بلکہ یہ شاید کسی پیپر میں آیا ہوا ہے یہ کوشچن، تو یہ ہمارا بایو ٹیکنالوجیز کا آنسر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں. اب آگے ایم سی کیوز جو کہ کریئر ان بایولوجی کے متعلق ہیں، بایولوجی سے منسلک جو پیشے ہیں ان کے متعلق جو ایم سی کیوز ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں وہ کر لیتے ہیں، پریکٹس ہو جائے گی ہماری. ہارٹیکلچر از اے پروفیشن وچ ریلیٹس ٹو، ہارٹیکلچر جو ہے وہ پیشہ ہے جس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اگر ہم کی ڈیفینیشنس دیکھیں تو بریڈنگ اینڈ کیئرنگ آف لائف اسٹاک نہیں، فش اینڈ فش فارمس نہیں، اس کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے. کلٹیویشن آف فروٹس، ویجیٹیبلس، فلاورز اینڈ ornamental plants میں بھی شاید ہو. کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف، یہ بھی ہمیں پتہ یہ نہیں ہے، تو ہم نے جب 3 کاٹ دیے تو یقیناً پھر ایک ہی جو آنسر ہے وہ یہ ہے. آرائشی پودوں، پھلوں، پھولوں اور سبزیوں وغیرہ کی نشو و نما ہارٹیکلچر کہلاتا ہے. آگے چلتے ہیں. The person who studies the effects of medicines on human and development of new drugs is، وہ پیشہ جس کا تعلق ادویات کے انسانوں پر اثرات اور نئی ادویات تیار کرنے سے ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں ایک ایک کر کے تو یس فارماکالوجسٹ ہو سکتا ہے. بایو ٹیکنالوجسٹ اگر آپ کنفرم نہیں ہے تو اس کو بھی کوشچن مارک کرتے ہیں. ڈینٹسٹ کا تعلق تو دانتوں سے ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، تو یہاں پہ کیونکہ دانتوں کا یا اورل کیویٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو کہ منہ کی جو ہماری کیویٹی ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو ڈینٹسٹ تو نہیں ہوگا. ڈاکٹر ڈرگ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. اب ہم نے ان 3 میں سے چوز کرنا ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹس آف میڈیسن آن ہیومن، تو ایفیکٹس آف میڈیسن آن ہیومن تو ہمیں بایو ٹیکنالوجسٹ کا تو پتا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ نکل گیا. اب رہ گیا ڈاکٹر اور فارماکولوجسٹ. میڈیسنس آن ہیومن شاید ڈاکٹر ہو، اور ڈیولپمنٹ آف نیو ڈرگس ڈائریکٹلی ڈاکٹر نہیں ہو، تو یہ نکل گیا. تو یہ دو جو چیزیں ہیں کس میں فٹ ہوتی ہیں؟ یہ فارماکولوجسٹ میں فٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اسٹرائک آؤٹ کر کے جو کوشچن اگر آپ کو سیدھا سیدھا نہیں آتا تو آپ اپنا آنسر جو ٹھیک والا ہے وہ نکال سکتے ہیں. اگر آپ کو سیدھا آئیڈیا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، پھر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے فزیکل ایکسرسائز اور مساج ٹو امپروو دا فزیکل موومنٹ آف پیشنٹ، یہ اگر آپ کو ڈیفینیشن یاد ہے تو یہ فزیوتھراپسٹ کرتا ہے. ورزش اور مالش کے ذریعے مریض کی جسمانی حرکت کو کون بہتر بناتا ہے؟
वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। एक्वाकल्चरिस्ट इज द बायोलॉजिस्ट। एक्वाकल्चरिस्ट कौन सा बायोलॉजिस्ट होता है? पहले तो एक्वाकल्चरिस्ट देख लें। एक्वा हमने किया था, दिस इज वाटर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस फिश इन फिश फॉर्म, ये बिल्कुल हो सकता है। ग्रोस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नहीं, ये बाकी तो खुद ब खुद निकल गए। तो ये इसका आंसर ए हुआ। आगे देख लेते हैं। वो बायोलॉजिस्ट जो फौजदारी तहकीकात में मदद देता है, यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करता है, वो कौन होता है? इसमें तो आपको आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग सा पेशा है जो कि आप फोरेंसिक साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। द पर्सन हु कल्टिवेट्स क्रॉप्स रेजेस एनिमल्स टू प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड। क्या ये फार्मर हो सकता है? जी हो सकता है। एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट हो सकता है? देख लेते हैं, इसको भी अभी हम गलत नहीं करते। और एनिमल साइंटिस्ट, क्योंकि एनिमल्स का जिक्र है, इसको भी हम वो नहीं करते। अब हम अपने स्टेम में आ जाते हैं। कल्टीवेट क्रॉप्स, कल्टीवेट क्रॉप्स को हम देखें तो यहाँ पे एनिमल साइंटिस्ट तो ये निकल गया इसमें, ठीक है। रेजिस एनिमल्स टू प्रोड्यूस फूड, इसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट निकल गया, ठीक है। अब आगे दो, इन दोनों का ताल्लुक कल्टीवेट क्रॉप से और टू प्रोड्यूस फूड से है। लेकिन जब हम इनकी डेफिनेशंस कर रहे थे तो हमने ये उस वक्त भी जिक्र किया था कि फार्मर ऐसा पेशा होता है जो कि कल्टीवेट करता है क्रॉप्स को और रेज करता है एनिमल्स को, जबकि एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है वो इन दोनों को प्रैक्टिस करता है, लेकिन उनमें रिसर्च करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अंदर क्या किया जा सकता है उन तरीकों पर रिसर्च करता है और वो ट्रांसफर करता है फार्मर की तरफ, ठीक है। तो ये आंसर इसका ए हुआ, ठीक है। फार्मर माल मवेशी के मियार और पैदावार बढ़ाने के लिए इनकी हिफाजत और अफजाइश नस्ल करने के अमल को कहा जाता है। क्या ये फिजियोथेरेपी हो सकती है? ना। फिशरीज हो सकती है, फिश का भी जिक्र नहीं। एग्रीकल्चर शायद। एनिमल हस्बेंड्री मे बी। अब आप देखें क्योंकि यहाँ पे क्रॉप्स का जिक्र नहीं है तो एग्रीकल्चर भी निकल गया, तो इसका आंसर डी यानी एनिमल हस्बेंड्री बन जाता है। टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अब इसको भी आपको गलत करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉरेस्ट का जिक्र है तो ये फॉरेस्ट्री होगा। जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर ली है। अब अगर हम अपनी इंग्लिश की बुक में देखें तो उसमें कॉलम है जिसके अंदर कुछ मजीद बायोलॉजी से रिलेटेड शोबे जो हैं वो दिए गए हैं। उनको भी देख लेते हैं कि कोई पता नहीं इनमें से आ जाए तो फिर हम अटेम्प्ट करने के काबिल जरूर हों। पहला है उसमें वेटरनरी मेडिसिन, जिनको उर्फे आम में वेट्स कहते हैं। ये डायग्नोज करते हैं एंड ट्रीट द डिजीजेस और इन एनिमल्स एंड सर्जरीज इन द एनिमल्स, जानवरों की सर्जरी जो होती है वो और उनकी बीमारियों की तशखीस करना वेट्स कहलाता है। इनका काम ज़रा मुश्किल होता है डॉक्टर्स से, क्योंकि इंसान तो अपनी तकलीफ बता देता है, जानवर अपनी तकलीफ बता नहीं सकता, तो इसलिए इनका काम थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि इनको परिंदों का भी देखना है, इन्होंने मछलियों का भी देखना है, इन्होंने माल मवेशी का भी देखना है, इन्होंने जो घर के पेट्स होते हैं उनको भी देखना होता है। तो ये होते हैं वेटनरी मेडिसिन के या वेट डॉक्टर्स होते हैं। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल साइंस या यानी कि मालियाती साइंस, जो कि सॉल्व्स इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आलूदगी और कुदरती वसाइल से मुतालिक मसाइल को हल करना। फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये हम वैसे तो देख चुके हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। ये एक मेजर जो डिविजन्स हैं, बड़ी डिविजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये उनमें आता है, जो इनको प्रैक्टिस करता है, इनमें रिसर्च करता है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिसर्च करता है। फिर एक होता है जेनेटिक काउंसलिंग। देखिए बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो
जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। वो जीन्स में माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो सकती हैं। कोई खराब जीन हो तो वो बीमारी पैदा करती है, और वही जीन अगर आगे बच्चों में ट्रांसफर हो जाए तो वो बच्चों में भी बीमारी पैदा कर सकती है। तो इन जीन्स को फाइंड आउट करना, उनको देखना, और फिर जो कपल है, जो माँ बाप हैं, उनको काउंसल करना, उनको मशवरा देना कि आप किन तरीकों से ये जीन्स जो हैं इनकी आगे ट्रांसफर होने से बच सकते हैं। तो इसको जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ग़िज़ाइयत और डाइटेटिक्स, एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ, सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुनासिब ग़िज़ाई आदात के बारे में मशवरा देना। जैसे ज़ियाबतीस है, डायबिटीज़ है, दिल की बीमारियां हैं, और बहुत सारी ग़िज़ा से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनके बारे में मशवरा देते हैं ये लोग पेशेंट्स को। बहुत से डॉक्टर्स इनके पास रेफ़र करते हैं कि आप इनसे जाके ग़िज़ा के बारे में कि कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो मशवरा ले लें। ठीक है? फिर होते हैं पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ से जो मुंसलिक लोग होते हैं, वो आगे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें, या नीचे से डायरेक्टली हाई स्कूल के बाद इस शोबे में आ सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली कम्युनिटीज़ के अंदर जो उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनकी एजुकेशन और पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है? फिर आ जाते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की होती है। ये मेडिकल इक्विपमेंट को इम्प्रूव करना, नए मेडिकल इक्विपमेंट बनाना, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, एक्सरे हैं, ये सारी इस तरह की ईसीजी मशीन है, इस तरह के सारे जो आलात हैं उनकी डिज़ाइनिंग और उन पे रिसर्च, और हॉस्पिटल्स में जो लगे होते हैं उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी रिपेयर है, उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। और आखिर में बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का ही हिस्सा है, कंप्यूटेशनल टूल है ये, जिसमें वही सीक्वेंसिंग का जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको एनालाइज करना, सीक्वेंसिंग करना, ये इनका बेसिकली काम होता है। हमने 4 आयतें की थी, जिनको हमने थोड़ा डिटेल से किया था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन मुझे ये एक ही मिला है, तो ये इसको देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि विच सूरा ऑफ होली कुरान वेरीफाइज द क्लासिफिकेशन। कुरान पाक की कौन सी सूरा है जो क्लासिफिकेशन की तस्दीक करती है? क्लासिफिकेशन की तस्दीक की हमें आपको याद होगा जो सूरत देखी थी, जो कि जिसमें 4 टाँगों के जानवरों का ज़िक्र था, जिनमें 2 टाँगों वाले जानवरों का ज़िक्र था। तो वो क्लासिफिकेशंस के मुताबिक थी। तो वो थी सूरा अन-नूर की। दूसरा तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का तो सिंपल सा है। बाकी देखें आप, सूरा बकरा है, अल कुरैश है और सूरा यासीन है। इन तीनों में से कोई सूरत हमने नहीं की थी। आपको जो भी आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा, उन 4 में से ही आएगा। ठीक है? अगर आप क्वेश्चन को देखें और आपको ना आ रहा हो तो घबराना नहीं है। उसके बाद उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और उनके आंसर्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ें, और आपके पास जो नॉलेज है आपकी याददाश्त में, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से, उसको उस पे अप्लाई करें, तो वो काफ़ी हद तक आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे शॉर्ट क्वेश्चंस या शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो कौन से आए हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है।